Hi guys, Hello, I am Megha I'm Anurag. and this is Poems with Friends where we read a poem and try to feel something. This is Episode number I have forgotten finally. Anurag. I think 17. देखते हैं, let's see if Anurag is right. Maybe less, maybe not. We'll see. ठीक है, आज की पोएम है Suddenly Summer by Alex Dimitrov. It's an amazing poem and I think both me and Anurag did not really completely understand it on the first reading. तो अच्छा मज़ा आएगा डिस्कस करके. You want to read it? It just. नहीं, कुछ नहीं. Suddenly Summer by Alex Dimitrov. There were days I didn't go out, and days I couldn't remember. Sometimes I sat at my desk watching the trees outside blooming, as if we had nothing in common. They had the sun, I had the sun through a window. They were beginning, I was unsure what I was. Then one afternoon, after an early drink, I decided to get them. Alive and understated. Aware, they were not the most beautiful flowers, yet reassuringly strong. I don't know how they gave the illusion of order. One that was impossible to find, talking to friends, lovers, old colleagues. They did not talk back. The tulips. They merely filled the room, their purpose being to be loved for what they were, entirely by how I saw them. No struggle for epiphany, no work. And so I did. I loved them. I was envious I could not be them. Simple and so sudden in a vase. Oh wow, बहुत ही सही पोएम है ये तो. I liked how I narrated it. I also liked it. काफी I- smooth flowing था. I usually don't narrate well. But I will start with why I shared this poem. Is I think जब मैंने शेयर करी थी तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा था. I was thinking a lot about identity and fear and everything and I was मतलब ज़्यादा सोचने लग जाओ इस चीज़ों के बारे में तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो ना कि मैं हूँ कौन मतलब. तो दिस द होल लाइन अबाउट आई थिंक देयर वाज दिस लाइन कि I was unsure what I was. हाँ आई वॉज अनश्योर वट आई वॉज दे वर बिगिनिंग आई वॉज अनश्योर वट आई वॉज और लुकिंग आउट थ्रू द विंडो अ लिटिल कन्फ्यूज अ लिटिल पर्पसलेस एट नेचर. वो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग लगी एंड आई ऑल्सो डू नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट बट मुझे वो फीलिंग बहुत कनेक्टिंग लगी कि एक इंसान जो खुद बहुत कन्फ्यूज है कि करना क्या है और वो नेचर को देख रहा है. बिकॉज आई डू दैट अ लॉट. मतलब जब मुझे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मैं कभी कभी खुद से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि नेचर के सेंस में ये क्वेश्चन कैसे आंसर होगा. मतलब इफ़ आई आस्क इफ देयर इज़ फियर इज नेचर या इफ़ आई आस्क कि हाउ डज नेचर डील विद मतलब इज देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी इन नेचर. तो आई आस्क दैट क्वेश्चन अलॉट कि तब शायद मुझे सही आंसर मिल जाएगा अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूँ तो इससे मैं काफ़ी सही लगी. Hmm. I think I really like this poem because this person was going through something. Okay, the purposelessness that we're discussing. And this is a very stream of consciousness poem. Key things keep changing. Like basically the thoughts of the person with the same object keeps changing. Like for example, the contrast is it feels slightly surreal because of the lack of connections. Like आई थिंक तू बहुत डीप में जा रहा है. मतलब थोड़ा उसको कंटेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं देन हाँ. लेट्स कम बैक टू व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज पीपल विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प यू नो. बट आई लव द पॉइंट अबाउट थॉट. क्या बोला तूने? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. दैट इज़ अ ग्रेट पॉइंट कि हाँ दिस इज़ नॉट अबाउट लाइक अ पर्टिकुलर इमेज या बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है वो एक बंदा है वो सोचे जा रहा है और वो कुछ कुछ फील करता है फिर कुछ फील करता है फिर कुछ फील करता है. मे बी दैट इज़ वाई आई ऑल्सो कनेक्टेड टू इट. आई जस्ट कुडेंट आर्टिकुलेट दैट क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थिंग्स से इन जनरल आई रिलेट अ लॉट. ठीक है, लेट्स गो वन बाय वन देन वील कम बैक टू व्हाट यू आर सेइंग अबाउट कॉन्ट्रास्ट. So there were days I didn't go out and days I couldn't remember. Sometimes I sat at my desk watching the tree outside blooming as if we had nothing in common. ठीक है, तो वी आर इन अ सेटिंग
where there is this person who is at his home, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा है, और he already seems depressed. I think there were days I didn't go out and days I couldn't remember. Is such a nice way of saying कि वो depressed type का लग रहा है थोड़ा, without telling it. without telling it directly. हाँ. कि there were days I was completely depressed, couldn't get out of bed जैसे लोग बोलते हैं. That is such a cliche way of saying it. But this is like such a fresh way of saying it कि there were days I didn't go out and days I couldn't remember, कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं पूरा दिन, तो तुम्हें याद ही नहीं है वो दिन में क्या हुआ. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कि ये बंदा है जो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, शायद थोड़ा सा डिप्रेस्ड है. समटाइम्स आई सैट एट माई डेस्क वॉचिंग द ट्रीज आउटसाइड ब्लूमिंग एज इफ वी हैड नथिंग इन कॉमन. So I really like this because I think it subverts a lot of tropes. कि for example, it says sometimes it's like the usually क्या होता है कि if you are lonely, you look at people. So for example, you look at a couple or you look at children playing, you will see lovers kissing, you will see old people hand in hand. So and you'll be like, oh, who are these people? How are they able to do all these things? But no. Right. The imagery is a tree blooming at the beginning of like हाँ राइट. दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि हाँ बंदा डिप्रेस है, खिड़की से बाहर देख रहा है, तो वन इमेज जो जनरली लोग यूज़ करते हैं कि अरे बच्चे बाहर खेल रहे हैं वही, और फिर वो बोलता है कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं, किस बात से खुश हैं. बट इट्स नॉट दैट. ये बंदा थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड है, इसने ट्री को देखा. एंड आई ऑल्सो लव्ड कि हाउ उसने उसी स्ट्रीम ऑफ थॉट में एक फिलोसफिकल सी लाइन मार दी कि वॉचिंग द ट्रीज आउटसाइड ब्लूमिंग एज इफ वी हैड नथिंग इन कॉमन. दिस इज ऑल्सो सच अ ग्रेट लाइन. दिस ऑल्सो स्टेड विद मी ऑन द फर्स्ट रीडिंग कि एज इफ वी हैड नथिंग इन कॉमन मतलब टेल्स सो मच कि ये बंदा बैठ के कितना सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है, ये ट्री और अपने बीच में कॉमनैलिटी लाने की कोशिश क्यों कर रहा है. और मतलब उसमें एक उसकी आंखों में एक एम्प्टीनेस सी दिखने लगती है. जो इंसान ऐसे बोल रहा है कि ट्री को मैंने देखा एज इफ वी हैड नथिंग इन कॉमन, एकदम मैंने एम्प्टीनेस से देखा उसको कि कुछ है ही नहीं मेरे और ट्री के बीच में तो कॉमन, क्योंकि मैं इतना डेड हूँ और ट्री इतना अलाइव है. मतलब एक बहुत ज़्यादा वो लगा कि एकदम पेल सा बंदा, उसकी आंखों में एकदम वो छाई हुई है परछाइयाँ. तो एक मतलब छोटी सी लाइन से कितना कुछ हो जाता है. एज इफ वी हैड नथिंग इन कॉमन इज सच अ वो मतलब टोन थिंग कि एकदम इट इज़ द लाइन दैट दिस कैरेक्टर इज सेइंग. ये जो कैरेक्टर हमने बनाया डिप्रेस्ड, ये बंदा बोल रहा है ये लाइन एक्चुअल अपने डिप्रेशन में से. पोएट एज अ राइटर उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, वो खुद ही ये लाइन बोल रहा है. So they had the sun. I had sun through a window. They were beginning. I was unsure what I was. Which is such a crazy way to do contrast. Okay. Usually contrast is opposites. So they are like they had the sun. I had the sun through a window. And these things have nothing in common. Right. What I really like is कि I would have probably put it as a gradation thing. But I am now looking at this weird contrast from the point of view as these things are nothing in common. Okay, you getting the sun directly versus you getting sun through a window Right. extremely different things. Extremely different. How? Yes. अमेजिंग पॉइंट कि हाँ उसने ये नहीं बोला कि हम दोनों तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे, उनके पास सन था, मेरे पास सन थ्रू अ विंडो था. ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे जा रही हैं. नथिंग इन कॉमन बोल रहा है पहले वो, फिर बोल रहा है उनके पास सन है, मेरे पास सन थ्रू अ विंडो है. तो उसके लिए उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग है कि इवन दो रैशनली वो देख पा रहा है कि उनके पास सन है, उसके पास सन थ्रू अ विंडो है, बट उसके माइंड में इट इज़ नॉट कॉमन. उसके माइंड में वो बिल्कुल ही अलग हो गया. The other thing I felt even more absurd contrast कि they were beginning, I was unsure what I was. कि they were the beginning, I was not the end. They were beginning, I was not the past. They were beginning, I was unsure of what I was. I was like, how is this a real contrast? But
कि आई थिंक या वही, जब इंसान डिप्रेस होता है तो वो बहुत कंफ्यूज भी हो जाता है ना, सोच सोच के खुद को ही कंफ्यूज कर लेता है आदमी। वो इसमें कितनी पैल्पेबल है वो कंफ्यूजन, नथिंग इन कॉमन बोल तो दिया अपने गुस्से में कि अरे कुछ कॉमन ही नहीं है हम में तो, क्योंकि मैं तो बहुत ही डिप्रेस हूँ। फिर वो जब एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस कर रहा है तो भी वो बहुत स्टार्क ऑनेस्टी से कर रहा है कि वो एकदम मैटर ऑफ फैक्टली बोल रहा है कि दे हैड द सन एट सनश्योर, दे वर बिगनिंग आई वाज अनश्योर। मैटर ऑफ फैक्टली वो ये चीज़ें बोल रहे हैं, मतलब देर इज़ नो फोर्स्ड पोएटिकनेस, जैसा तूने बोला ना कि वो ऐसा कुछ फोर्स्ड पोएटिकनेस नहीं है कि हमें अब एकदम ऑपोजिट ही गिनवाने हैं। जो है वो यही है, कंफ्यूजन, चीज़ें आपस में मिल नहीं रही हैं, कभी नथिंग इन कॉमन बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है। which to me adds to the charm of this poem क्योंकि Yes, yes. like इट्स वेरी रियल। हाँ it's very real कि this is the stream of consciousness part कि there is no way to say कि मेरा previous thought और current thought have to connect राइट राइट कि मैंने ये सोचा मैंने ये सोचा मैंने ये सोचा and all of these are connected just because they exist। हाँ, एक्चुअली इससे मुझे याद आया, मैं और राहुल बात कर रहे थे तो भी एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी, मतलब अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड एंड आई वॉज आस्किंग हिम क्वेश्चंस कि अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है या क्या लग रहा है। तो ही वॉज डूइंग एग्जैक्टली दिस कि वो एक स्टेटमेंट बोलता था और 5 मिनट बाद एकदम ही कुछ उसकी कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट बोल देता था। आई एम लाइक कि अभी तो तुमने ये बोला था, अब तुम ये बोल रहे हो कि तुम ये करना चाह रहे हो। और मतलब आई वाज लाइक कि मतलब आई कुड सी कि वो बहुत ही अपने डिप्रेशन में खुद ही कंफ्यूज है, विच इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग हियर कि अभी उसने कुछ बोला वो कुछ और बोल रहा है। मतलब हाँ, बहुत रियल डिपिक्शन है। You want to They had the sun, I had the sun through a window. They were beginning, I was unsure of what I was. Then one afternoon, after an early drink, I decided to get them, alive and understated. Aware they were not the most beautiful flowers, yet reassuringly strong. काफ़ी सही, बहुत ही सही है ये तो। मतलब what I like about this is कि इसके अंदर एक मतलब इतने सारे इमोशन मिक्स है ना, इस ये जो इसने सीन क्रिएट करा है। तो इसमें गुस्सा सा लग रहा है कि उसने बोला कि यार, क्योंकि उस स्टार्टिंग से ही वो थोड़ा गुस्से में लग रहा है, जब डिप्रेस होता है इंसान थोड़ा गुस्से में भी आ जाता है ना, कि ड्रिंक ली उसने, फिर उसने बोला कि लेके आता हूँ यार मैं फूलों को, ये क्या फूल है ये, और फिर बट उसमें एक ब्यूटी भी है, अलाइव एंड अंडरस्टेटेड, और कि एक होप भी दिख रही है थोड़ी सी कि अच्छा बंदा बाहर जा रहा है फूल लेके आ रहा है तो शायद कुछ अच्छा होने वाला है। बट उसमें गुस्सा भी है, बट उसमें एक फिर से ऑनेस्टी, ड्राई ऑनेस्टी भी है कि अवेयर दे वर नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ऐसा नहीं है कि ओ मैंने तो बहुत ही सुंदर फूल देखे अपनी खिड़की बाहर और डिप्रेशन ही सही हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। एंड येट रीअश्योरिंगली स्ट्रॉन्ग, मतलब इतनी सारी चीज इमोशन मिक्स हैं इसके अंदर, गुस्सा, ब्यूटी, होप, स्टिल अवेयरनेस एंड ड्राई ऑनेस्टी अबाउट थिंग्स की वाह। और मतलब एक और चीज की इम्पल्सिवनेस कि मैं हूँ, आई एम इन दैट स्टेटस फॉर सो लॉन्ग कि कितना फनी है ना कि तुमने आई थिंक अर्ली ड्रिंक इज दारू, तो कि उसने दारू लिया, ही लाइक लेकर आ देखें क्या है। हाँ, सच में मतलब वो पूरा जोन सा बन रहा है कि वो दारू पीते पीते कि दारू पीते तो डिप्रेस है, तो एकदम से उसको इम्पल्स आए कि अरे यार क्या फूल है लेके आओ जरा। नाइस एंड इंटरेस्टिंग हाउ ही डिस्क्राइब्स द फ्लावर्स ऑल्सो। आई डिसाइडेड टू गेट देम, एंड आई डिसाइडेड टू गेट देम में ही कितना ज़्यादा वो इमोशन है कि एकदम मतलब फूल गेट देम की जैसे किसी को पीटने जा रहा हो, ऑलमोस्ट ऐसा इमोशन है। अलाइव एंड अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड क्यों? क्योंकि उसको अंडरस्टेटेड लगते होंगे, पता नहीं। अंडरस्टेटमेंट मतलब वो होता है ना कि कोई बहुत सही चीज बट तुमने अंडरस्टेटेड मतलब कि बहुत फ्लैशी नहीं होती ना वो चीज कोई कि राइट बहुत सुंदर नहीं है, दे आर जस्ट लाइक ज़्यादा की ब्यूटी इज अंडरस्टेटेड, अलाइव एंड अंडरस्टेटेड, अवेयर दे वर नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स येट रीअश्योरिंगली स्ट्रॉन्ग। मतलब उसको अवेयर, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, उसको ये भी अवेयरनेस है कि ठीक है वो ब्यूटीफुल नहीं है, और रीअश्योरिंगली मुझे लग रहा है वो अपने आप के लिए भी कह रहा है कि मतलब उसको रीअश्योरेंस मिल रही है उन फूलों को देख के, वो उसको पता है। Which is the interesting part कि this poem I cannot connect at a surface level कि
all the things this person is saying, they had sun, I had sun through a window. Yeah, tulips are not the most beautiful flower, but reassuringly मतलब strong. And I'm like, is it कि मतलब, but I can feel this person at a meta level कि the strength he is deriving from these things, the way this person is talking, I can imagine points in my life where I did it for completely different things. कि other people did not have to understand them for it Right, to right. be meaningful. राइट वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बट उसके लिए उसकी लाइफ में वो एक ट्रूथ है राइट राइट आई डोंट नो हाउ दे गेव द इल्यूजन ऑफ ऑर्डर ये भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे वन दैट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड टॉकिंग टू फ्रेंड्स लवर्स ओल्ड कलीग्स दे डिड नॉट टॉक बैक द ट्यूलिप्स इसमें म्यूजिकलिटी भी अच्छी है टॉकिंग टू फ्रेंड्स लवर्स ओल्ड कलीग्स दे डिड नॉट टॉक बैक द ट्यूलिप्स यहाँ पे but one that was impossible to find मतलब illusion of order. हाँ यस यस वन दैट वाज उसको वो ऑर्डर अपनी लाइफ में मिल नहीं रहा था दूसरे लोगों से बात करके बट ट्यूलिप्स से मिल गया आई ऑल्सो लव हाउ ही सेज कि आई डोंट नो हाउ दे गेव द इल्यूजन ऑफ ऑर्डर पिछली ही लाइन में उसने बोला है कि दे वर रीअश्योरिंगली स्ट्रॉन्ग बट वो उस ओवर थिंकिंग फेज में है तो वो अभी भी क्वेश्चन कर रहा है कि दे कैसे रहे हैं ये ऐसी फीलिंग मुझे नहीं पता मतलब कि मुझे मिल रही है हाँ. कि आई फील द बेस्ट लुकिंग एट देम और कि मतलब कितना फनी है कि illusion of order is yeah like I think this is threaded throughout the poem कि illusion of order का talking back से क्या लेना देना पता नहीं कि क्या है कि but that person is like नहीं they do not talk back और मेरे को उससे बहुत ही कुछ है जितना प्रोजेक्शन है उस हाँ मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे रियश्योरिंगली स्ट्रांग भी लग रहे हैं वो पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों लग रहे हैं मतलब वो अपने मतलब उसकी एक खुद इंसान की एक डायकॉटमी सी लग रही है जो डिप्रेस है ओवर थिंक कर रहा है पर एट द सेम टाइम वो उसको ओवर थिंकिंग को फिक्स करना चाहता है तो वो एक्शन भी ले रहा है पर एक्शन लेते लेते भी वो कंफ्यूज ही है कि मैं ये जो एक्शन ले रहा हूँ इससे कुछ तो हो रहा है पता नहीं क्यों हो रहा है नहीं समझ आ रहा मुझे वैसे वो गुस्से में ही है तब भी वो मतलब दोनों उसका कंफ्यूजन और उसके एक्शन और ब्यूटी दोनों इतने ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हैं वन दैट वाज इम्पॉसिबल टू फाइंड टॉकिंग टू फ्रेंड्स लवर्स ओल्ड कलीग्स तो उसको मिला नहीं कुछ भी एंड आई लव हाउ दिस लाइन अबाउट टॉकिंग टू फ्रेंड्स लवर्स ओल्ड कलीग्स इतनी लेट आती है पोएम में कब तक दिस पर्सन सीम्स लाइक अ लोनली पर्सन कि जिसकी जिंदगी में कोई नहीं है बट दिस पर्सन हैज अ लाइफ राइट उसने और भी चीज़ें ट्राई करी हैं और वो इतना डिप्रेस क्यों है ऐसा उसने उन्होंने पहले से डिस्क्राइब नहीं किया कि यार मैं बहुत डिप्रेस हूँ मैंने बात करने की कोशिश करी पर कुछ नहीं मिला नहीं हमने उसकी ज़िंदगी के एक पॉइंट से स्टार्ट किया जहाँ वो खिड़की से बैठ के देख रहा था और फिर उसको फूल दिखे फिर उसने दारू पी देन वी आर गोइंग इनटू हिज बैक स्टोरी कि भाई इसने कोशिश करी लोगों से बात करने की पर इसको मज़ा नहीं आया बात करके इसलिए इतना डिप्रेस है ये आई लव मतलब वो होता है ना दिस गिव्स द पोएम अ सॉर्ट ऑफ लाइक डिस्कवरी आई थिंक अखिलेश वाज सेइंग दैट कि ही लव्स द फीलिंग ऑफ डिस्कवरी आई थिंक वो थोड़ा पजल टाइप की डिस्कवरी की बात कर रहा था बट आई डोंट नो बट दिस मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब कहीं हम मिडल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और फिर हम बाद में जाके कुछ बोलते हैं बिकॉज linearity is so boring. Yeah. I think क्योंकि this is a very unreliable narrator. Like this narrator is not unreliable in the sense that this narrator is very truthful. But because we are looking at the thoughts, we have to piece together भाई who is this person? Who is this person? क्या क्योंकि this person की reality में तो is no order. हाँ yes उसको वैसे खुद भी नहीं मिल पा रहा है इसीलिए वो order में thoughts भी नहीं बता पा रहा अपने. When that was impossible to find, उसके बाद they merely filled the room, their purpose being to be loved for what they were, entirely by how I saw them. No struggle or epiphany, no work. They did not talk back the tulips, they merely filled the room. ठीक है. Their purpose being to be loved for what they were, entirely by how I saw them. So such a real thing. कि that is truly the purpose of flowers we buy.
Okay, the only purpose of them is to be loved, Hmm. and by entirely how you see them. And truly, this is such a remarkable क्या? explanation Hmm. for why we buy flowers. Right. Like, this is the essence of it. No one ever said it this way, but Yeah. it is this. मेरे को एक्चुअली अभी पढ़ते हुए ये रियलाइज़ हुआ, जो मुझे पहली दूसरी तीसरी बार नहीं रियलाइज़ हुआ, कि उसने जब ये बोला देयर पर्पस बीइंग टू बी लव्ड फॉर व्हाट दे वर एंटायरली बाय हाउ वी सॉ देम, नो स्ट्रगल और एपिफनी, मुझे ऐसा लगा कि फॉर हिम वो ऐसा बोलना चाह रहा होगा शायद कि वो अपना पर्पस ढूंढ रहा हो. मतलब डिप्रेस जब आदमी होता है वो सबसे पहले पर्पस ही क्वेश्चन करता है ना, कि मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में. तो वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब उनका तो पर्पस कुछ था ही नहीं, बस ये था कि टू बी लव्ड, नो स्ट्रगल और एपिफनी. तो अभी मुझे पढ़ते हुए रियलाइज हुआ मे बी दैट इज हिज वे ऑफ सेइंग कि वो पहले अपने पर्पस के बारे में सोच रहा होगा कि मेरा क्या पर्पस है एज अ पर्सन, और अपना पर्पस ढूंढने में स्ट्रगल लगती है या एपिफनी लगती है ना. तुम स्ट्रगल करो या तुम्हें एकदम से एपिफनी हो जाए कि ओ मेरा तो ये पर्पस है. तो फूलों के सेंस में वो बोल रहा है कि वो तो बस पर्पस था ही नहीं उनका, तो बस पर्पस यही था, बीइंग टू बी लव्ड, नो स्ट्रगल और एपिफनी. To find the purpose. टू फाइंड द पर्पस ही इज, मतलब इन अ वे, इन अ राउंड अबाउट फैशन वो अपनी स्ट्रगल डिस्क्राइब कर रहा है कि वो डिप्रेस बैठ के अपना पर्पस सोचे जा रहा था क्या है. कि ना उसको एपिफनी मिल रही है, इतना स्ट्रगल है, बहुत वर्क है. राइट. बट इट इज वेरी रियश्योरिंग फॉर देम टू सी ट्यूलिप्स जिनकी जिंदगी इतनी सिंपल है. हाँ, उनका पर्पस यही है, बस सिंपल सा. हाँ, कि लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ट्यूलिप्स आर लाइक यस गुड. Right, but this is such an amazing poem because I have read मतलब so many poems about purposelessness, existential crisis, life वगैरह, but ये इतना राउंड अबाउट फैशन में आके हिट्स द नेल ऑन द हेड, एंड नॉट ज़बरदस्ती राउंड अबाउट फैशन में. इट इज़ लाइक एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द वर्किंग्स ऑफ द माइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ डिप्रेस्ड. और इतने प्यार से उसने बोल दिया कि मैं ट्यूलिप्स लेके आया और उनका तो कोई पर्पस ही नहीं है, बस लव्ड पर्पस है. मतलब एकदम वो बंदा जो कंफ्यूज हो रहा होता है और वो देखता है कि यार ये बिल्ली है, इसका तो बस कुछ है ही नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ बैठ के कि मेरा क्या है. And so I did. I loved them. I was envious I could not be them. Simple and so sudden in a bus. कि एंडिंग भी इतनी अब्रप्ट है. काफ़ी अच्छे से क्लोज कर दिया उसने, नो स्ट्रगल और एपिफनी. मतलब आई कैन ऑलमोस्ट सी हिज इमोशनल जर्नी, कि वो गुस्से में इम्पल्सिवली दारू पी के गया, फिर वो थोड़ा सा सरप्राइज, मतलब उसको रिलीफ भी हुआ, बट फिर थोड़ा कंफ्यूज भी हो. You were talking about the simplicity. हाँ, मतलब द एंडिंग आई लव्ड कि उसका पूरा वो एक एंडिंग में एक साई ऑफ रिलीफ सा मुझे लगा. मतलब वो एंगर था, फिर एंगर में इम्पल्सिवली जाके वो फूल लेके आया, फिर फूल से उसे कन्फ्यूजन भी हुआ कि ये पता नहीं क्यों इल्यूजन ऑफ ऑर्डर दे रहे हैं, पर दे तो रहे हैं. पर उसे थोड़ा अच्छा भी लगा कि नियरली फिल्ड द रूम, देयर पर्पस बीइंग टू बी लव्ड, तो उसे थोड़े आंसर्स भी मिले. बट फिर उसने ये भी बोल दिया कि एंड सो आई डिड, आई लव देम, आई वॉज एनवियस आई कुड नॉट बी देम. वो एनवियस भी था कि ये इतनी सिंपल कैसे हैं, बट मतलब एक रिलीफ भी मिला कि मतलब ये होता है ना, अ नॉट इन हिज हेड गॉट सॉल्व्ड. मतलब मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगा पढ़ते पढ़ते कि अ नॉट इन माई हेड गॉट सॉल्व्ड, कि सिंपल एंड सो सडन इन अ वेज, दैट्स इट. मतलब उसने वो भी कर दिया, मतलब एक क्लोज भी कर दिया थॉट को, कि एक डिप्रेशन की तरह हम ऐसे 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 घूम रहे थे, बट एंड तक आते आते हमने थोड़ा सा वो जंबल को सॉर्ट करके एक बात भी बोल दी कि ये है, ये एक रियलाइजेशन तो मुझे आज की हो गई. मतलब उसका नाम भी है सडनली समर. ओ कि दिस इज आल्सो कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट पर्सन गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन. लाइक मतलब not getting out of depression but kind of for this finding a meaning कि अभी क्योंकि for days and days that person has like struggling to figure out order, struggling to figure out what is the purpose, and now getting those tulips is very
मतलब reassuring. हाँ मतलब कि ये आंसर वाज सो सिंपल. हाँ मतलब आई ऑल्सो लव हाउ ही पुट्स द आंसर कि अगर इफ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्सन's एग्जिस्टेंस विच कैन ट्रांसलेट टू पर्पस ऑफ ह्यूमंस, उसने आंसर भी बहुत सिंपल मतलब नॉर्मल दिया कि सिंपल एंड सो सडन. मतलब सडन, आई लव द यूज ऑफ द वर्ड सडन क्योंकि हम ये बोलते रहते हैं ना कि हम आए इस दुनिया में और हम ऐसे ट्रैक करते रहते हैं कि हमारी हिस्ट्री, हमने ये किया वो किया, हम ये इंसान है वो इंसान है, तो इस बात का क्या मतलब है उस बात का क्या मतलब है. मतलब हमारा माइंड एक पैटर्न मैचिंग मशीन है ना कि वो हिस्टोरिकल डेटा को लेके वो लगाता रहता है, प्रिडिक्शंस लगाता रहता है. तो आई लव द वर्ड सडन कि मतलब सडनली अगर तुम ये सोचो कि तुम सडनली आ गए अभी, तो तुम अपना इतना पर्पस थोड़ी क्वेश्चन करोगे. पर्पस क्वेश्चन करने में तो तुम सोचोगे कि वो मेरे पापा ये थे, मैंने ये किया लाइफ में, ये इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा था, इतने तुम जो क्वेश्चन पूछोगे. एकदम से तुम सडनली एग्जिस्टेंस में आ गए तो तुम थोड़ी पूछोगे इतने क्वेश्चन. नाइस. ठीक है. Any other thing that you have about the poem? Notice. Hmm, I think we have discussed most of the things that I liked about this poem. I think I think this is my type of poem. I really like stream of thought. This is very much a character poem, if that is a word that I can coin. कि इसमें कैरेक्टर का, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ प्ले का मोनोलॉग. I can see that. हाँ, it has this dramatic thing going on throughout this. उसके इतने इमोशंस चेंज हो रहे हैं एंड वी नेवर इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब हिज सराउंडिंग्स, इट इज़ जस्ट हिम टॉकिंग अबाउट इट. तो मेरे आई थिंक दिस इज माई फेवरेट काइंड ऑफ पोएम. ठीक है, लेट्स रीड इट वन मोर टाइम. Suddenly Summer by Alex Dimitrov. There were days I didn't go out and days I couldn't remember. Sometimes I sat at my desk watching the trees outside blooming as if we had nothing in common. They had the sun, I had the sun through a window. They were beginning, I was unsure what I was. Then one afternoon after an early drink I decided to get them, alive and understated. Aware they were not the most beautiful flowers, yet reassuringly strong. I don't know how they gave the illusion of order, one that was impossible to find, talking to friends, lovers, old colleagues. They did not talk back, the tulips. They merely filled the room, their purpose being to be loved for what they were, entirely by how I saw them. No struggle or epiphany, no work. And so I did. I loved them. I was envious I could not be them, simple and so sudden, in a vase. Yes. I actually also like मतलब इसमें एक थोड़ा सा वो है डिफरेंट फ्रॉम अ प्ले मोनोलॉग इसकी. इन अ प्ले मोनोलॉग मतलब इट विल जस्ट बी द डायलॉग. इसमें उसने बहुत ही स्मार्टली और सीक्रेटली थोड़े थोड़े विजुअल एलिमेंट्स डाल दिए हैं, बिकॉज तुम प्ले देख नहीं रहे हो ना, तो तुम्हारे पास वो विजुअल सेटिंग नहीं है. तो जैसे उसने इन आवाज़ लिखा, अगर कोई बोलेगा तो सिंपल एंड सो सडन पे रुक जाएगा ना स्टेज पे, अगर कोई डायलॉग बोल रहा है तो. इन आवाज इज लाइक अ सीक्रेट इंसर्शन टू क्रिएट दैट इमेज इन आवर हेड कि फुल इमेजिन करो आवाज में ऐसा. Which is very also on the nose कि इन आवाज एक्चुअली थोड़ा वो है कि मैंने इसके बारे में सोचा and I kind of skipped talking about it, but how I look at it is like कि वो नहीं होता कि एक मूवी चल रही है और मूवी के एंड में तुम एक चीज पे जूम इन करते हो धीरे-धीरे zoom out करके इन आवाज. राइट कि अब ये एंडिंग वो है. Right. काफी कुछ चल रहा था तो हाँ आई थिंक आई इमेजिन्ड इट एज यू आर करेक्टली सेइंग कि उसने वो तुम्हें छोटा सा डाल के वो इमेजिन करा दी, एक एंडिंग इमेज तुम्हें दे दी उसने टू गो ऑफ विद, व्हिच इज ग्रेट. लाइक आई आल्सो लाइक कि दिस पर्सन्स वो
हाउ दिस इज नॉट एक्चुअली रियलिटी. सडन पार्ट मेरे को एक्चुअली थोड़ा अलग तरह से हिट किया. मेरे को एक आई कुड नॉट फाइंड वर्ड्स कि क्यों मेरे को ये सडन मेरे को क्यों थोड़ा इनकॉन्ग्रुएंट लगा, क्योंकि एक्चुअली इट्स नॉट सडन. आई थिंक आई when you were reading the poem, I realized this through it, and I was connecting it to the point that he said कि oh the paper suddenly आ गए कि without the history etc. But of course इसकी भी तो history रही है ना कि the whole point is कि this कि there is a history to the fact that tulips exist in this current past because this person was depressed, this person was looking at the trees outside and thought कि चलो मैं अपने लिए tulips ले आता हूँ. फिर उसने उसको किसी से लिया, काटा और यहाँ पे रखा. And the lesson this person got from that is not a continuation of it. He's like, what I now see is I love these tulips, and there was a moment when they did not exist. Now there's a moment that they exist, and this is so sudden. कि मतलब my love for them, etc. The things have changed. Right, that is हाँ काफी सही पकड़ाया था तूने कि एक्चुअली में सडनली नहीं हुई हैं चीज़ें, बट वो जो उसको फीलिंग आई अचानक से लव की और उनको देखने की, वो सडनली आई है. एंड वही बहुत सही पॉइंट है ये तो, क्योंकि इट्स लाइक कि लाइफ इज एक्चुअली नॉट सडन. तुम बिग बैंग से आए, सब कुछ हुआ तुम्हारे साथ, बट द ओनली वे टू लिव इट इज टू प्रिटेंड दैट इट वॉज सडन. कि अभी प्रेजेंट ही है, जो भी है कुछ भी हुआ नहीं है, ये प्रिटेंड ही करना पड़ेगा. इवन जैसे आई थिंक लव वव की बात भी हम करते हैं तो लोग बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक उसमें भी मतलब एक झूठ टाइप का ही होता है. वो कभी एकदम से सडन नहीं होता है. तुम इंसान को देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें तुमने नोटिस करी होती हैं, कुछ करा होता है और तुम्हारे माइंड में एक चीज़ें बन रही होती है, बट तुम्हें लगता है कि ओ मुझे तो सडन इसी मोमेंट पे हुआ था प्यार. एक्चुअली सडन नहीं हुआ था तुमको. मेक सेंस. काफ़ी सही वर्ड है. सही. ठीक है. Let us know guys what you think about sudden love and sudden summer. And this is it. We will see you next time. Bye. चलो बिट्टू. अच्छा लग रहा है, मेरे को थोड़ा क्लोजर लग रहा है इस पोयम को वो पढ़ने के बाद.